Hello, dear second year students. Today we are going to start our next lecture on the topic of transcription. Transcription can be defined as the synthesis of RNA from the DNA. अजीज तलबा, आज हम बात करेंगे ट्रांसक्रिप्शन पर। ट्रांसक्रिप्शन सेंट्रल डॉग्मा का पहला स्टेप है, यानी डीएनए से आरएनए का पैदा होना ट्रांसक्रिप्शन कहलाता है। And the key points of our today's lecture are: number one is the initiation, elongation and termination. अजीज तलबा, अगर देखा जाए तो ट्रांसक्रिप्शन के प्रोसेस को 3 स्टेप्स में मुकम्मल किया जाता है। पहला मरहला इनिशिएशन का है, दूसरा मरहला इलोंगेशन और तीसरा टर्मिनेशन का है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इनिशिएशन हम देखते हैं डीएनए के अंदर वो पॉइंट जहां पर जीन मौजूद हो। आरएनए पॉलीमरेज एक एंजाइम है जो उस जीन की इंफॉर्मेशन को कॉपी करता है आरएनए की शक्ल में, जिसे हम मैसेंजर आरएनए कहते हैं। सो इन द इनिशिएशन प्रोसेस, फर्स्टली द आरएनए पॉलीमरेज एन एंजाइम used that is responsible for the synthesis of the messenger RNA or the RNA, and secondly the DNA has a specific sequence that is called promoters, and thirdly DNA as consists of the two strands. One strand of the DNA is the template strand and other one is the coding strand, and fourthly transcriptional bubble is formed. So first of all, RNA polymerase. RNA polymerase is an enzyme that composed of two main parts, or the two main portions. One is the core enzyme and other one is the sigma factor. The function of the core enzyme is the synthesis of the RNA, and that of the sigma factor is recognition of the promoter sequence on the DNA template strand. अजीज तलबा, अगर देखा जाए तो ट्रांसक्रिप्शन करने का जो मेन एंजाइम जिसे आरएनए पॉलीमरेज कहते हैं, ये 2 हिस्सों पर मुश्तमिल है। एक जिसे हम कोर एंजाइम कहते हैं और इसका बकिया हिस्सा सिग्मा फैक्टर कहलाता है। सिग्मा फैक्टर का काम जहां से जीन की इंफॉर्मेशन को कॉपी करना, उस हिस्से को प्रोमोटर कहा जाता है, उसको रिकॉग्नाइज करना है। और कोर एंजाइम का काम आरएनए सिंथेसाइज करना। और इसी तरह से हम देखते हैं आरएनए पॉलीमरेज वर्क इन अ डायरेक्शन फ्रॉम 5 प्राइम एंड टू 3 प्राइम एंड डायरेक्शन। जैसे कि आपने इससे पहले डीएनए रेप्लिकेशन में भी पढ़ा था, डीएनए पॉलीमरेज भी 5 प्राइम एंड से 3 प्राइम एंड की डायरेक्शन में वर्क करता है। इन द सिमिलर वे आरएनए पॉलीमरेज आल्सो वर्क्स इन द डायरेक्शन ऑफ 5 प्राइम एंड टू 3 प्राइम एंड। And one type of the RNA polymerase is found in the prokaryotes that is responsible for the synthesis of messenger ribosomal and the transfer RNA in the prokaryotic cells. While in the eukaryotes, RNA polymerase is of 3 types. RNA polymerase first synthesizes the ribosomal RNA, and the RNA polymerase second synthesizes the messenger RNA. In the similar way, RNA polymerase third is responsible for the synthesis of the transfer RNA. अजीज तलबा, अगर देखा जाए तो प्रोकैरियोट्स में आरएनए पॉलीमरेज एक ही किस्म का एंजाइम है जो राइबोसोमल आरएनए भी पैदा करता है, मैसेंजर आरएनए भी पैदा करेगा और ट्रांसफर आरएनए भी पैदा करेगा। जबकि यूकैरियोट्स में आरएनए पॉलीमरेज फर्स्ट राइबोसोमल आरएनए पैदा करने के लिए जिम्मेदार है और आरएनए पॉलीमरेज सेकेंड मैसेंजर आरएनए पैदा करता है, और इसी तरह से आरएनए पॉलीमरेज थर्ड ट्रांसफर आरएनए की सिंथेसिस करवाता है। तो ये रोल हुआ आरएनए पॉलीमरेज का। नेक्स्ट इज द प्रोमोटर। प्रोमोटर इज द specific sequence of the DNA nucleotide that mostly composed of the 6 base pair on the DNA template strand, and the promoter is a site where the transcription starts and RNA polymerase enzymes bind at the RNA polymerase bind at this site on the DNA template strand. In the prokaryotes, these sequences are found
before -35 nucleotide and -10 nucleotide before a gene, and these sequences are TTGACA and TAT-AAT. In the eukaryotes, these sequences are found at 75 and 25 nucleotides before the start of a gene. It is called upstream because these sequences are present before the start of genes, so these are also called upstream sequences are the signals. अजीज तुलबा अगर देखा जाए तो प्रोमोटर एक वो सिग्नल है जिसको आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम्स का सिग्मा फैक्टर पहचानता है और इसको रिकॉग्नाइज करता है। फिर इसके बाद आरएनए पॉलीमरेज का कोर एंजाइम का पोर्शन मैसेंजर आरएनए, राइबोसोमल आरएनए या ट्रांसफर आरएनए की सिंथेसिस करवाता है, यानी ट्रांसक्रिप्शन का आगाज करता है। देखा जाए तो प्रोकैरियोट्स में ये प्रोमोटर सिग्नल TTGACA -35 यानी 35 न्यूक्लियोटाइड पहले किसी भी जीन से मौजूद होता है और TAT-AAT ये -10 यानी 10 न्यूक्लियोटाइड पहले किसी भी जीन से ये पाया जाता है। जबकि यही सीक्वेंसेस यूकैरियोटिक सेल में 25 और 75 न्यूक्लियोटाइड पहले पाए जाते हैं। इनको हम कहते हैं दीज आर द प्रोमोटर सिग्नल्स आर द प्रोमोटर सीक्वेंसेस। And secondly, the DNA is composed of the two strands. One strand of the DNA is called template strand. The strand that is transcribed are the strands that act as the template. It is also called the antisense or the non-coding strand. While the other strand is the coding strand, the strand opposite to the non-transcribing strand. It is also called the sense strand, and it is the difference between coding and the template strand. template strand जिस तुलवा अगर देखा जाए तो डीएनए का वो स्ट्रैंड जिस पर मैसेंजर आरएनए सिंथेसाइज होता है वो टेम्पलेट के तौर पर वर्क करती है, जबकि उसके अपोजिट स्ट्रैंड जिसके ऊपर मैसेंजर आरएनए सिंथेसाइज नहीं हो रहा उसका सिग्नल एक्चुअल में मैसेंजर आरएनए में कॉपी हो रहा होता है, इसीलिए हम इसे कहते हैं इट इज द कोडिंग स्ट्रैंड। And thirdly, what is the transcriptional bubble? Transcriptional bubble is a bubble where the DNA strands open up at the place where the enzyme is attached with the promoter or the template strand for transcription. So it creates a bubble. It is called transcriptional bubble. And this transcriptional bubble on the DNA template strands opens up or unwind upstream and rewind down the streams. जिस सुरबा अगर देखा जाए तो ट्रांसक्रिप्शनल बबल वो पॉइंट जहां से ट्रांसक्रिप्शन का आगाज होगा, दो डीएनए के स्ट्रैंड्स एक दूसरे से अलग हो जाते हैं तो डीएनए के दो धागे वहां से खुले हुए नजर आते हैं जिसको हम ट्रांसक्रिप्शनल बबल कहते हैं, और जीन्स की तरफ बढ़ते हुए यानी डाउन स्ट्रीम ये ट्रांसक्रिप्शनल बबल या हम कहते हैं डीएनए के स्ट्रैंड्स खुलते जाते हैं और अप स्ट्रीम यानी बैक साइड से डीएनए फिर से डबल हेलिकल फॉर्म में आता जाता है, इसको हम ट्रांसक्रिप्शनल बबल कहते हैं। नाउ इट इज द डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ द ट्रांसक्रिप्शन और द होल प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन। Next one is the elongation. Sigma factor detaches after the initiations and then the process of elongations continue. The core enzymes moves over the template strand and synthesizes the RNA according to the complementary base pairings. That is why the elongation is actually a speedy process because the core enzymes of the RNA polymerase synthesizes RNA according to the base pair sequence of the template strand. It is the elongation steps. The growing strand of the RNA protrude from the transcriptional bubbles. As soon as the messenger RNA is synthesized, it protrude out or moves out from the transcriptional bubble. अजीज तलबा अगर देखा जाए तो elongation में सिग्मा फैक्टर अपने आप को अलग कर लेता है इनिशिएशन मुकम्मल करवाने के बाद,
और फिर इसके बाद अगर देखा जाए तो कोर एंजाइम्स टेम्पलेट से ट्रेंड पर आगे बढ़ता जाता है और कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग के रूल के एतबार से आरएनए की सिंथेसिस होती जाती है। जैसे जैसे मैसेंजर आरएनए सिंथेसाइज होता है वो ट्रांसक्रिप्शनल बबल से बाहर की तरफ प्रोट्रूड होता है, बाहर की तरफ निकलना शुरू हो जाता है। जो सबसे पहले एंड मैसेंजर आरएनए का बाहर निकलता है वो 5 प्राइम एंड होता है, क्यों कि मैसेंजर आरएनए 5 to 3 प्राइम एंड की डायरेक्शन में ग्रो करता है या सिंथेसाइज होता है। एंड इन द लास्ट टर्मिनेशन स्टेप्स the stop signal or the stop sequence at the end of a gene terminates the synthesis of the RNA. The stop signal is found in the form of a series of GC base pair that is followed by the series of adenine thymine base pairs. The GC repeats form a hairpin loop which causes the RNA polymerases to stop. The addition of a 7-methyl GTP residues at the 5' end of the messenger RNA in the form of a cap and a tail of the polyadenine at the 3' end protects this messenger RNA to the long journey from nucleus to the cytoplasm outside of the nucleus. अजीज तुलबा अगर देखा जाए तो टर्मिनेशन वो आखिरी मरहला है जिसमें मैसेंजर आरएनए की सिंथेसिस मुकम्मल होती है। जब कभी भी जीन की इंफॉर्मेशन को मुकम्मल तौर पर मैसेंजर आरएनए में कॉपी कर लिया जाता है तो आखिर में खास तरह का स्टॉप सीक्वेंस या स्टॉप सिग्नल आता है जिसे हम कहते हैं गवानीन साइटोसिन बेस पेयर का रिपीटिंग सिग्नल है, जिसके फौरन बाद एडेनिन थायमीन का रिपीटिंग सिग्नल आना शुरू हो जाता है। जब देखते हैं कि आरएनए पॉलीमरेज का कोर एंजाइम काफी देर तक गवानीन साइटोसिन रिपीटिंग सिग्नल्स को मैसेंजर आरएनए में कॉपी करता रहा तो इस गवानीन साइटोसिन बेस पेयर के रिपीटिंग सिग्नल के कॉपी हो जाने से मैसेंजर आरएनए का हेयरपिन लूप बन जाता है, जो कि इससे पीछे आपने डायग्राम में देखा है। तो इस तरह से मैसेंजर आरएनए की सिंथेसिस मुकम्मल हो जाती है। फिर इसके बाद मैसेंजर आरएनए पर 5' एंड पर एक कैप 7-मेथाइल गवानीन ट्राइफॉस्फेट के रेजिड्यूज की ऐड की जाती है ताकि इस एंड से कोई फॉस्फेटेज एंजाइम, कोई एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम मैसेंजर आरएनए को डैमेज ना कर सके। और इसी ही तरह से मैसेंजर आरएनए के 3' एंड पे पॉलीएडिनाइल टेल ऐड कर दी जाती है ताकि इस एंड से भी मैसेंजर आरएनए को प्रोटेक्शन मिल जाए। So in this way the process of transcription is terminated and transcriptional is completed. Thank you and good luck.